Abdul Jabbar. As an assistant professor in the Department of Education and Training. Chairperson is none other than Dr. Akram Hussain. He belongs to Bihar and he was working from 2006 in Maulana Azhar National University. Recently he has become associate professor. For becoming associate professor, I think we are just having a round of applause for him, and because for the sake of today's seminar, I just welcome sir and you guys also, and we are starting our presentation with the permission from our chairperson and service presentation. Here I just inviting, welcoming sir also to this seminar, and for giving happiness, for the sake of the happiness, we will be providing this to others, sir. I am calling sir, please come. Let us have a big round of applause. Thank you, sir. I think it would be better if you are calling in a chronological order that is written in the paper. First name is given here is Basiba Anju. Second is Gulshan, MD Akif Haidar, MD Haidar Ali, Nabi Raza Khan, Wasir Adam, Jarar Ahmad, Sabi Siddiqui, Shaheen Shah Ghani, Iftikhar Hussain, Ajaz Ahmad Mir, Sonu Rajat, Sohail Raza, Ms. Uzama, Shabana Musam, Asma, Shabnam, and Nazia Thakur. These are the participants, those who are coming in assembly paper. Okay? Sir, the first person to sorry. अस्सलामु अलैकुम। मेरा पेपर सभी सर के साथ में वाइट पेपर है, इस वजह से गूगल माप की वजह से अलग अलग आ गया है नाम। उन्वान है उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर वली से नज़ीर अकबर आबादी तक। इसमें जो सुबह में तमाम तर बातें हो रही थी कि किस तरह से उर्दू शायरों ने गंगा जमुनी तहजीब के बारे में अपने कलाम पेश किए हैं, उसी हवाले से यहाँ बात की जाएगी। और ख़ास तौर से नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह से अपनी तमाम बातों को पेश किया है, जो उसके ताल्लुक से ये पेपर है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से अमन व आश्ती का की दावत उन्होंने दी है। और ख़ास तौर से उर्दू के हवाले से जब बात कही जाती है तो ये कही जाती है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शुरा गुजरे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि ये एक ज़बान है और ज़बान का ताल्लुक किसी भी मज़हब से या किसी भी इलाके से नहीं होता है। ये एक आफाकी ज़बान की हैसियत जो है वो आफाकी होती है। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनूबी हिंद में उर्दू शायरी के पहले आसार सूफियों की तहरीरों में देखे जा सकते हैं, जो कि एक मुख्तलिफ किस्म की शायरी है, लेकिन मुताबिकत की बात यह है कि उसका मुआवजा अक्सर हिंदुस्तान की वक्ती रिवायत से किया जाता है। शाह तुराब के शेर को बतौर मिसाल यहाँ पे पेश किया जा रहा है, जिन्होंने कहा कि अरे मन शताबी सती आशरन में। अब देखिए कि इसमें आप गौर ये कर सकते हैं कि उर्दू मुसलमान शायर है और हिंदी में और इसके अल्फाज जो हैं, जैसा कि सुबह में ही मिसाल दी है कि ज़हार इसकी मकरूह तकाबुल और इस तरह के मौसम काकूबी की नात के हवाले से गुफ्तगू की गई। तो तमाम मुस्लिम शुरा हैं, लेकिन कहीं अल्फाज में गंगा जमुनी की तहजीब मिलती है, कहीं फिक्र में मिलती है और कहीं पर हमें खुद शायरों में मिलती है। तो यहाँ पे जो मिसाल पेश की जा रही है वो है कि अरे मन शताबी सती आशरन में है सारा सकत सदगुरु के चरण में। मुल्ला वजी दक्कन के मशहूर शायर हैं, उनका ताल्लुक कुली कुतुब शाह के दौर से है। बादशाह की तारीफ़ करते हुए वजी बगैर किसी हिचकिचाहट के कहता है, उसे किशन कहता है। और मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर एक बोकनी शाह की जो माँ है, हर एक बोकनी शाह की जो माँ है कि इस दौर में शाह है।
یہ نوٹ کرنا کافی دلچسپ ہے کہ اردو میں پہلی مہاکاوی کا عنوان قدم راؤ ہے، جسے ملا وجھی نے لکھا۔ یہ وکرم کتھا سے دلوں کے تبادلے کے ایک ہندوستانی افسانے سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم عادل شاہ ایک شاعر اور حکمران تھے جنہوں نے ایک نظم نورس لکھی۔ نظم سنسکرت ادب میں زیر بحث نورسوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کا آغاز سرسوتی وندنا سے ہوتا ہے جو سنسکرت کی مشہور روایت ہے۔ اسی طرح سے افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی اور فضل علی فضلی کی کربل کتھا، اور پھر 1760 تک اردو شاعری کی تاریخ میں اتنے ہی ہندو شاعر ہیں جتنے کہ مسلمان۔ ان میں راجا رام نارائن، چندر بھان برہمن، ولی رام ولی، آنند رام مخلص، مہاراجا بینی بہادر، راجا نیول روے، لچھے رام فدا نمایاں تھے۔ راجا رام نارائن موزن کا سراج الدولہ کو خراج عقیدت اکثر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صحت مند تعلقات کی ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں پہ کیا گزری، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ تو اس طرح سے خواجہ میر گڑھ، اور میں بہت سارے وہاں سے اسکپ کر رہا ہوں، جن لوگوں نے اردو شاعری کے حوالے سے اور خاص طور سے یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے گنگا جمنی تہذیب کو لے کر اپنی شاعری کو آگے بڑھایا۔ تو نذیر اکبر آبادی اپنی شاعری کو عوام کی آواز بناتے ہوئے نذیر نے اپنے دنوں کی غربت کے بارے میں لکھا۔ انہوں نے آٹا، دال اور روٹی پر مکمل نظمیں لکھی۔ ہولی، بارات اور بارات پر ان کی نظمیں ہندوستان کی جامع ثقافتی ورثے کی بہترین مثالیں ہیں۔ کرشن جی اور گرو نانک پر ان کی نظمیں ایسی ہیں کہ موجودہ دور کے قاری کے لیے ان کی مذہبی شناخت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کسی کو اس کے علم کی صداقت، اس کے بیان کی سادگی اور اس کی سوچ کی سادگی پر تعجب کرنا پڑتا ہے۔ اب ملاحظہ کریں کہ بس یہ آخری ایک نظم ہے کہ ان کو تو بالپن سے تھا کام کچھ ذرا، سنسار کی جو ریت تھی اس کو رکھا بچا، مالک ہیں وہ تو آپ ہی، انہیں بالپن سے کیا، وہاں بالپن بڑھاپا جوانی سب ایک تھا، ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بالپن، کیا کیا کہوں میں کشن کنہیا کا بالپن، موہن مدن گوپال کرے بنسی منہرن، بلہارے ان کے نام پر میرا یہ تن بدن، گردھاری نند لال ہری ناتھ گووردھن، لکھوں ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بالپن، کیا کیا کہوں میں کشن کنہیا کا بالپن۔ جس چیز نے نذیر کو بھکتی شاعروں کو قریب پہنچایا وہ ہندوستان کے سیکولر کردار پر ان کا پختہ یقین ہے، جو ہمیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بغیر دوسرے کا احترام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور آج کے سیمینار کا بالکل یہی مقصد بھی ہے کہ ہم کس طرح سے طلبہ میں ان موضوعات کو یا ان اقدار کو انکلکیٹ کریں، اور نہ صرف اتنا انکلکیٹ کریں بلکہ اس کے لیے ان کا جو ایک ہیبٹ فارمیشن ہوتا ہے، ایک برتاؤ یا ایک کردار سازی جو ہوتی ہے، اس عمل کو ہم لے کے آئیں تاکہ آج کا جو معاشرہ پستی اور اقدار سے پرے ہے اس کو کس طرح سے اقدار والا بنایا جائے اور پستی سے بلندی کی طرف لے کر جایا جائے۔ یہی تمام ہماری آج کی کوششیں ہیں، اور اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آج لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان الگ ہیں، اردو الگ ہے، زبان الگ ہے، شاعری الگ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے، لیکن جو جہانگیری کی جو ایک بات ہوتی ہے، جو ایک عالمی یا آفاقی بات ہوتی ہے، اس پہ ہمیں ڈٹ کے رہنا ہے، اور جو اقدار ہوتے ہیں وہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتے ہیں، وہ آفاقی ہوتے ہیں۔ تو میرا پیپر بھی شاعری کے حوالے سے ان تمام باتوں موضوعات کا احاطہ کر رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ Very amazing presentation. The person number 2, Muhammad Akif Haider. Board of Urdu Literature promoting Ganga Yamuna University. السلام علیکم۔ میرا آج کے سیمینار کا موضوع ہے اردو ادب کے ذریعہ گنگا جمنی تہذیب کا فروغ۔ راقب محمد عاکف حیدر، خدمت سپروائزر پروفیسر مشتاق احمد پٹیل، GTG مانو حیدرآباد۔ اردو زبان ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول کی جیتی جاگتی نشانی اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کی حکومتی تصویر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ادب اپنے ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہر چند کے عقائد، رسوم، تہذیب و تمدن اور زندگی کے دوسرے تمام پہلو ادبی تخلیقات میں مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہر چند کے اردو ادب پر عربی و فارسی کا اثر ہے، لیکن ہندوستانی عناصر کے ساتھ آمیز ہو کر بڑی رنگ برنگی تصویریں تخلیق کی ہیں اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کی جبی مرقع اپنے دامن میں محفوظ کر لیے ہیں۔ ادیبوں نے
गंगा जमुनी तहजीब की भरपूर वकालत की है और किस तरह उसको फ़रोग़ दिया जाए उसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। हिंदू मज़हब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, एक छोटी सी मिसाल पेश है। 18वीं सदी की बात है कि मिर्ज़ा मज़हर जाना से सवाल किया गया, क्या हिंदुस्तान एक काफिर अरब के मुशरिकीन के मानिंद अपना बेअसल दीन रखते हैं, या उस दीन में कोई असल थी या मनसूख हो गया, और लोगों के बुजुर्गों के हक़ में कैसा बर्ताव रखना चाहिए। मिर्ज़ा मज़हर जाना ने जवाब दिया, कोट, अहले हिंद की कदीम किताबों से जो कुछ मालूम होता है वो ये है कि नौए इंसान की पैदाइश के शुरू में रहमत इलाही ने लोगों को माद व माश की इस्लाह के लिए एक किताब भेजी थी जिसमें 4 दफ्तर हैं और अमर नहीं के हकाम और माजी मुस्तबिल के वाक़यात हैं। इस ज़माने के मुज्तहिदीन ने इस किताब से 6 मज़ाहिब इस्तिखराज किए और उसूल क़वाइद की बुनियाद पर उन पर कायम की। इसी तरह 4 फ़िरक़े बनाए और अलग अलग मसलब मुक़र्रर किए। वह तमाम फ़िरक़े तौहीद इलाही के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं, आलम को मखलूक जानते हैं, नेक व बद की जज़ा व सज़ा और हिसाब किताब के कायल हैं, अनकोट। इसी तरह एक हल्का सूफ़ी अदीबों का भी है, क्योंकि तसव्वुफ़ और हिंदुस्तानी फ़िक्र की रवायत को उर्दू अदब ने खासा फ़रोग़ दिया। ये ज़रूर है कि तसव्वुफ़ में उर्दू अदब से अलहदा भी कुछ अनासिर हैं, मगर मजमूई तौर पर उसकी फ़ज़ा हिंदुस्तानी है। तसव्वुफ़ की राह से मुसावात का तसव्वुर उर्दू अदब के ज़रिए आम हुआ। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का गैर ब्राह्मण के मुकाबले में तअस्सुब आम था, मगर उर्दू का नज़रिया हयात मसावात मबनी था, इसलिए यहाँ शेख व ब्राह्मण के फ़र्क कहीं नहीं मिलता। आज़ाद ख़याली, इत्तिहाद मज़ाहिब, वसीउल मशरबी, वसल, इश्क, उसके अनासिर तस्लीम किए गए हैं। इसी पर अशार समात फरमाएँ कि आबरू का शेर है, क्या शेख व क्या ब्राह्मण जब आशिकी में आवे, क्या शेख व क्या ब्राह्मण जब आशिकी में आवे, तस्बीह करे फरामोश सुन्नार भूल जावे। इसी तरह अमीर मीनाई का शेर है, मशरब सुलहकुल है ए ज़ाहिद, मशरब सुलहकुल है ए ज़ाहिद, देर भी एक हरम का साया है। नसर निगारी में लोहा मनवाने वाली शख्सियत प्रेमचंद ने अपने नावलों अफसानों में जो किरदार तख्लीक किए हैं वह सब के सब हिंदुस्तानी हैं और मुश्तरका तहजीब की मिजाज के मालिक हैं, यानी समाजी व अखलाकी कदरों पर ईमान रखते हैं। नाबिल गोशी आफियत में जब बलराज और लाखनपुर के दूसरे किसान ज़मींदार ज्वाला सिंह के जालिम कारिंदों पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाते हैं और गांव का कोई भी किसान ज़मींदार और पुलिस के खौफ से उनकी हमायत में गवाही देने पर तैयार नहीं होता है, तो उसी गाँव के सपूत कादिर मियाँ की कुर्बानी से वो रिहाई पाते हैं। कहानी राजभक्त में अंग्रेज अवध के एक नवाब पर हमला आवर होते हैं तो राजा बख्तावर सिंह अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें बचाता है। अनगिनत कहानियों में ऐसे हिंदू मुस्लिम किरदार मिलते हैं जो अपने मुल्क और अपने हम वतनों की फलाह बहबूदी के लिए कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं करते। यूँ तो फ़िरक़ा वारिद के ख़िलाफ़ जहाद में कई बेमिसाल वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ एक का जिक्र है। 1933 में चतुरसेन शास्त्री की किताब इस्लाम का विश्व वृक्ष यानी इस्लाम का जहरीला दरख्त शाये हुई। बकौल अमृत राय, जब इस किताब के बारे में मुंशी प्रेमचंद को मालूम हुआ तो किसी करवट चैन नहीं पा रहे थे। अलगर्ज प्रेमचंद ने हमेशा कोशिश की कि हिंदुस्तान ज़हनी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएँ और मजहबी अकायद और रवायात को समझें, जिससे गलतफहमी का इज़ाला हो सके। उर्दू में जो हिंदू त्योहारों और रसूमात पर जितनी नज़में मिलेंगी उतनी मुस्लिम त्योहारों पर नहीं मिलती। नज़ीर अकबरवादी ने सिर्फ होली पर 11 नज़में कहीं, अल्लामा इक़बाल ने इमाम हिंद के उन्वान पर राम पर एक गैर मामूली नज़र कही। यहाँ तक कि गज़ल में भी हिंदुस्तानी तहज़ीब दिखाई देती हैं, जैसे कुछ अशार मुलाज़ा करें। मीर तक़ी मीर ने कहा है, आतिश इश्क ने रावण को जलाकर मारा, आतिश इश्क ने रावण को जलाकर मारा, गर्चे लंका में था उस देव का घर पानी में। इसी तरह गालिब का शेर है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदती हो जब जो अब राग जुस्तजू क्या है। इस तरह इससे या सगाना का है कि बुतों को देख कर सबने खुदा को पहचाना, बुतों को देख कर सबने खुदा को पहचाना, खुदा के घर तो कोई बंदे खुदा न गया। एक आखिरी शेर अकबर आबादी का जो तहजीब को बताती है कि मुहर्रम और दशहरा साथ होगा, मुहर्रम और दशहरा साथ होगा, निबाह उनका खुदा के हाथ होगा। उर्दू मुसलमानों की ज़बान न होकर पूरी खित्ता की ज़बान मानी जाती है। इस ज़बान में हालिया दिनों में कौमी ज़बान उर्दू रिसाला ने एक ख़ुसूसी शुमारा अक्टूबर 2022 में हैदराबाद से शाये किया, जिसमें उर्दू के गैर मुस्लिम अदबा और शुअरा का तज़किरा मिलता है। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल के मुताबिक उर्दू ज़बान किसी ख़ास मज़हब या जोग्राफिया खित्ते में मुक़य्यद न थी और न है।
یہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. اس کی بولیاں مختلف ہے اور انداز بیان جدا جدا. اس کے لکھنے پڑھنے اور بولنے والوں میں اکثریت تو مسلمانوں کی رہتی ہے، لیکن اس کو سبھی اقوام نے اپنایا ہے، خوب سنوارا اور اس کی خدمت کی ہے. گنگا جمنی تہذیب میں اردو کا اہم کردار رہا ہے. اردو کو سنوارنے کے لیے ملک کے تمام افراد نے کام کیا. اس گفتگو کو تقویت دینے کے لیے پروفیسر مشتاق احمد پٹیل کے چک بست سے متعلق مضمون سے اس اقتباس کا ذکر ہے، جہاں وہ لکھتے ہیں: اسی لیے مقبول عام اردو ہے میرا نام، میں خسرو کے پہلی میں. نظم میں اقبال اشر نے چک بست کے بارے میں کیا خوب کہا ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارا، ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارا، چک بست کی الفت نے میرے خوب سنوارے، فانی میں سجائے میرے پلکوں پہ ستارے. اردو میں گنگا جمنی تہذیب کی موجودہ دور کی ایک اہم مثال لتا حیا ہے. وہ لکھتی ہیں: میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جس سے اردو نے پالا ہے، اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے، مجھے پیار دونوں سے اگر یہ بھی حقیقت ہے، لتا جب لڑکھڑاتی ہے حیا ہی نہیں سنبھالا ہے. اس گفتگو کو percentage, you should complete your presentation within 5 minutes. Maximum you can go for 6 minutes. Okay, because we will be having various session also. Okay, Shabnam for the next question. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I would like to thank my teachers for giving me the opportunity, and this is a joint paper with my supervisor, Professor Mustaq. The paper entitled Spiritual Intelligence and Ganga Jamuni Tehzeeb. First of all, we will discuss about what is spiritual intelligence. There are 3 basic concepts which are basically discussed in psychology, which are pertaining to IQ, EQ and SQ. That is intelligence quotient, emotional quotient and spiritual quotient. In the early and mid of 20th century, the intelligence quotient and emotional quotient were the most popularized and discussed concept. But at the end of this century, the third quotient, spiritual quotient, was the most discussed concept. In 1997, Zohar and Marshall first introduced the term spiritual intelligence in their book Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. The spiritual quotient considered and solved the problems related to meaning and values. With the high SQ, a person can live their life in a wider, richer and meaning-giving context. In a study, author very beautifully defined that IQ is responsible for a successful life. IQ is responsible for qualifying entrance test in institution. EQ is responsible for a successful life. But SQ is responsible for a meaningful life. The SQ is our compass at the edge. Problems which exist outside an expected or familiar condition are the most challenging. The person doesn't know how to handle. According to Chau's theory, the edge is the border between systematic and totally dispersed situation, between known and a strange condition. Means the edge is the place where the individual must be more creative. Here the individual can be guided by the SQ, that is sense of meaning and values. Important characteristics of SQ: spiritual quotient, a capacity to be flexible, a high degree of self-awareness, a quality of being inspired by vision and values. The next one is ask why or what if. And the last one, field independence. Now we will know about concept about Ganga Jamuni Tehzeeb. Ganga Jamuni Tehzeeb is an amalgamation of Hindu and Muslim maintaining their identity, belief and culture, respecting each other and continuing their belief without disturbing others. As the water of Yamuna and Ganga mix without losing their identity, the flow of Ganga is slightly more than that of Yamuna, but both the water mixes and flow simultaneously in a calm and peaceful manner. This is the message to live together without interrupting others and also our own belief system, tradition, culture and identity. How spiritual intelligence help in promoting Ganga Jamuni Tehzeeb? In this modern society, spiritual intelligence is collectively low. Our society become more and more materialistic with narrow self-centeredness and lack of values and humanity that are the sign of a spiritually dumb culture.
Idealism, a school of philosophy, talks about the spiritual and ethical values, that is truth, beauty and goodness. The concept of Ganga Yamuni Tehzeeb is not very far away from it. Here, the above mentioned values are for God, society and for oneself. A spiritually intelligent person must be self-realized. They know their strengths and weaknesses. They have no confusion regarding their identity. So never suffer inferiority or superiority complex and avoid a spiritually intelligent person must be self-realized. They know their strengths and weaknesses. They have no confusion regarding their identity. So they never suffer inferiority or superiority complex and avoid violence, which is also an important aspect of Ganga Jamuni Tehzeeb. Also, a spiritually intelligent person have a very high level of brotherhood for the same as well as different community, which is the major focus point of Ganga Jamuni Tehzeeb. Field independence is a chief side of spiritual intelligence, where the individual think more logically, critically and creatively, which is necessary for living together in diversity. And this is the urgent need of our country. Thank you very much. Thank you, Shobna. The next presenter is Asma Anjum. My name is Asma Anjum, research scholar, Department of Education and Training. मेरे पेपर का अनुमान है गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ में तालीम का किरदार। जैसे कि तारीख गवाह है, मुल्क में मुख्तलिफ मज़हबों, मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते और बसते हैं। ज़माने क़दीम से लोग बिना किसी तफरीक़, ज़ात पात, मज़हब और मिल्लत एक दूसरे के तेज और त्यौहार में और खुशी व गम में शामिल होते थे, जिससे इन्हें बाहमी अमानी गंगा जमनी तहजीब का सबूत मिलता है। जैसे गंगा जमनी लफ्ज़ हिंदी ज़बान के लफ्ज़ का माना है, जिसका माने है मखलूत और मुरक्कब के, और तहजीब उर्दू की इस्लाह से जिसके माने है सक़ाफ़त, शाइस्तगी या तरक्की से। एक और इस्लाह में हम देखते हैं कि गंगा जमनी लफ्ज़ जो है गंगा जमुना नदी का जब मिलन होता है, उस नदी का भी हवाला दिया जाता है, जो एक अभी अलग पहचान के साथ एक अलग मुख्तलिफ जगह से निकलते हुए एक जगह पर जम होती है, लेकिन वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखती है। जिस तरह गंगा का तेज़ रफ्तार के साथ साफ पानी वो अपनी हिंदू तहजीब के फ़रोग़ के साथ, और जमुना में सब्र व सुकून और मुस्लिम तहजीब के फ़रोग़ के साथ जब ये दोनों एक जगह मिलते हैं तो अपना रंग बरकरार रखते हैं। इस हसीन मुलाकात के लिए वो अपना रंग बाकी भी रखते हैं, वो छोड़ते नहीं। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर सक़ाफ़त, कल्चर की तश्कील करते हैं, आपस में मुत्तहिद रहने की तरकीब करते हैं। जैसे हमारा मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबले में यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों और लिसानियत और सक़ाफ़त का संगम मिलता है। यहाँ पे तीज त्यौहार, जलसे जुलूस के में हिंदुस्तान की ज़िंदगियों की अलामत है। मुख्तलिफ त्योहारों को जोश व खरोश से मनाते भी हैं, जैसे मुग़लिया सल्तनत में होली, दिवाली, जन्माष्टमी के साथ साथ नौरोज़ा जैसे त्यौहार भी मनाए जाते थे। और सूबाई मुग़ल पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि वहाँ की जो पेंटिंग्स की नुमाइशें हैं, इनमें मुख्तलिफ त्योहारों की तक़रीबात को ज़ाहिर करती है वो पेंटिंग है, जिससे गंगा जमनी तहज़ीब का सबूत मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़माने क़दीम से हमारे मुल्क में तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तालीम से मुराद माहौल के फ़र्द वाहिद पर होने वाले ऐसे असरात से है कि उसकी किरदार, तर्ज़-ए-अमल, सोच और रवैयों में नुमायाँ और मुस्तक़िल तब्दीली लाए, और माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं में तबाई, समाजी व सक़ाफ़ती और तालीम को ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे माहौल के तहत बेहतर मुताबिकत पैदा कर सकें। और तालीम के ज़रिए लोगों में, तुलबा में, अशख़ास में हम आपस में भाईचारे की मोहब्बत, दोस्ती के जज्बात पैदा करना है, और एक दूसरे की तहज़ीब, सक़ाफ़त, फ़न, आर्ट, मौसीक़ी के बारे में जानना, कल्चरल टॉलरेंस पैदा करना, ये सब तालीम के ज़रिए मुमकिन है। जैसे हम जानते हैं कि कोठारी कमीशन का मतलब
تعلیم کا عمل مختلف مراحل کو ہو کر گزرتا ہے. تو ان میں سے چند یہ ہے کہ میں ذکر کروں گی. سب سے پہلے رول آف ایجوکیشنل کمیٹی کمیشنز ان پروموٹنگ گنگا جمنی تہذیب. اس میں ہم ملک کی ترقی وہاں کی کسی بھی ملک کی ترقی وہاں کی تعلیم پر منحصر ہوتی ہے. تو وہاں جسی بھی ملک کا جو کمیٹیز بنتی ہیں وہاں کے فلسفے پر مبنی ہوتا ہے. تو وہاں کی جو تعلیمی کمیٹیاں اور کمیشن ہیں وہاں کی ضرورت کے حالات کے مطابق بنائی جاتی ہیں. اس طریقے سے ہم جو پرانی کمیٹی کمیشنز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوٹاری یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ مذہبی تعلیم پہ توجہ دینا تھا. کوٹاری کمیشن کی سفارشات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں مساعی موقع معذور طلبہ علاقائی قبائلی صنفی امتیاز کو کم کرنا تھا. یہ سفارش دی گئی تھی. اس کے علاوہ ہندوستان میں مختلف مذہب اور نسل زبانوں کا فرق نہ کرتے ہوئے تعلیم کے مساعی موقع فراہم کرنا یہ ہماری تعلیمی کمیٹیاں ان سفارشات کو پیش کرتی ہیں جس سے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں اہم رول ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم ذکر کرتے ہیں نصاب گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں نصاب کا کردار. جیسے ہماری مختلف تعلیمی پالیسیاں آئی ہیں جو NPE 1968 میں یہ سفارش دی گئی تھی کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے مشترکہ شہریت ثقافت کے احساس کو فروغ دینا ہے اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانا. جیسے NPE 1986 کی سفارش تھی کامن اسکولی سسٹم جس میں ذات پات عقیدہ جنس علاقیت کو فتح نظر کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کا اعادہ کیا جائے. اس کے علاوہ NCF 2005 میں ہم اس کی سفارشات میں دیکھتے ہیں مساوات طلباء کی شمولیت پہ زور دیا گیا ہے جس میں معاشی سماجی حالات جن صلاحیتوں میں فرق نہ کرتے ہوئے مساوی مواقع دینا ہے. اب ہم جو ہماری موجودہ تعلیمی پالیسی ہے NEP 2020 کی سفارش تھی کہ پروموٹ دا ملٹی لنگوالزم امپیتھی ایکوالٹی ڈیموکریٹک آؤٹ لک انٹیگریٹی اینڈ جسٹس. یعنی ہمارے ہم جتنی بھی تعلیمی پالیسیوں کا دیکھتے ہیں اس میں ڈائیورسٹی جیسے مواد کو شامل کرنے کا ریکمینڈ کیا گیا ہے اور جس میں مختلف مذاہب کے ثقافتی اقدار اور اس کے کانٹریبیوشن اور اس کی تاریخ شامل کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور یہی ہے جس کی وجہ جو تعلیم میں نصاب اہم رول ادا کرتا ہے تاکہ گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے سکے. اس کے بعد ہم گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں تعلیمی اداروں کا کردار پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد میں ذکر کروں گی اساتذہ کا کردار. جیسے ہم جانتے ہیں کہ NEP 1986 کا ایک کوٹ ہے The status of the teacher reflects the socio-cultural growth of the society. It's said that no people can rise above the level of the teacher. یعنی یہاں پہ NEP 86 اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ٹیچرس کے رول اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم بحثیت استاد اس چیز کو سمجھیں کیونکہ ہم ایک قوم کے مہمان بھی ہیں. نصاب جتنا چاہے مؤثر ہی تیار کر دیں اگر ہم اس کو پراپر امپلیمنٹ نہ کریں تو وہ اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو ہماری بحثیت ٹیچر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نصاب کو صحیح طریقے سے طلباء تک مؤثر انداز میں مختلف کلچر زبانیں اور اس کے بارے میں صحیح معلومات پہنچانا آگاہی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے اندر جذبہ پیدا کرنا کہ وہ متعدد زبانوں کو سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی رواداری ہمدردی اور احترام کے جذبے کو فروغ دیں. اس کے علاوہ ہم سماج کا بھی کردار دیکھ سکتے ہیں جو آج کل ہم دیکھنا. اور کنکلوڈنگ یہ ہے کہ گنگا جمنا تہذیب کے تصور ہندوستان کی جامع ثقافت کا حوالہ دیتا ہے. تعلیم ایک اہم رول ادا کرتا ہے جس میں تعلیمی پالیسیاں کمیشن کمیٹی تعلیمی ادارے سماج اساتذہ کا بہت ہی اہم رول ہے. تو طلباء کو کلچر مذہبی ثقافت ورثہ امن اخلاقی تعلیمی مہیا کرنے چاہیے تاکہ ان میں یکجہتی ہم آہنگی اور مختلف مذہب کی قدردانی پیدا ہو. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نصابی کتب سے تاریخی واقعات یا پھر مشہور اشخاص جو گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں ان کے اسباب کو حذف کیا جا رہا ہے. ہم بحیثیت اساتذہ اسٹیک ہولڈر ایجوکیٹرس پالیسی میکرس کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کو اس بات ہم اپنا رول ادا کریں تاکہ ہم گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیں. اور لڑائی جو آج کل سیاست میں جھلک رہا ہے کہ وہ آپسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور امن کا خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. تو یہ
इस तहजीब को बरकरार रखने की कोशिश करें। थैंक यू। मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड प्रमोटिंग गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर तहजीब का नाम है। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में लोग गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करते आ रहे हैं। बढ़ती हुई तेज रफ्तारी के साथ टेक्नोलॉजी ने एक नई दुनिया से रोशनास कराया, जो एक फिजिकल वर्ल्ड ना होकर वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से मशहूर है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सारे नाम से आप लोग वाकिफ होंगे: फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह। सोशल मीडिया गंगा जमुनी तहजीब को फ़रोग़ देने और महफूज करने में अहम किरदार अदा करती है, जो हिंदुस्तान की जामे सकाफत, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम रवायात के संगम की नुमाइंदगी करती है। आज के वक्त में दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के नाम से जानती है और हर फर्द डिजिटलाइज हो चुका है, जो अब हम उसे डिजिटल सिटीजनशिप भी कहते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा वाइड प्लेटफॉर्म है जो मिनटों और सेकंडों में पूरी दुनिया को गंगा जमुनी तहजीब का दर्श दे रहा है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ता है। हर एक चीज़ के मुस्बत और मुनफी दोनों पहलू होते हैं। ये मुनहसर करता है इंसान की नफ्स और नीयत पे कि वो किस तरह से उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर तरीके से हम गंगा जमुनी तहजीब को फ़रोग़ दे पाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब का जश्न मनाने वाले मंसूबों पर ताबून करने, पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका मौसीकी, रक़्स या आर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आर्ट्स की नुमाइश करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब के पैगाम को वसीतर सामईन तक पहुँचाने में मदद करता है। सकाफती तनू और शमूलियत को अहमियत देने वाले असर उसलूब के साथ ताबुन, पैगाम की रसाई और असर को बढ़ाता है। ये प्लेटफॉर्म किसी मजहब, कौम, मिल्लत या ज़ात की बुनियाद पर फ़र्क यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, बल्कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे के ताउन से दर्स व तदरीस करते हैं और पैगाम मोहब्बत को आम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम सेशन, वेबिनार का इनेकाद करने और माहिरीन, स्कॉलर्स और फनकारों को गंगा जमुनी तहजीब के बारे में सामईन को बहस मुबाहिसा और तालीम देने की इजाज़त देता है और इसमें इंट्रोडक्शन सेशन, पैनल डिस्कशन और यहाँ तक के परफॉर्मेंस भी शामिल है, जो कि सकाफती रुझान के जौहर को ज़ाहिर करता है। सोशल मीडिया आज के दौर में हमारी गंगा जमुनी तहजीब और सकाफत को उजागर करती है और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी की अक्कासी करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौजवानों में मकबूल है, जो उन्हें गंगा जमुनी तहजीब की अहमियत के बारे में बताते हैं, उन्हें मशगूल करने और उन्हें तरकीब देती है। नौजवानों को चैलेंजेस, ऐसे मुकाबले बनाने जिसमें शिरकत और तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करते हैं और सकाफती वर्से को महफूज करने में फ़ख्र और मिल्कियत के एहसास को फ़रोग़ देने में मदद करता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और नफरत और बदगुमानी फैलाते हैं, मगर इससे क़तई नज़र सोशल मीडिया एक दूसरे मज़ाहिब, उसके अक़ायद, उसके रसूमात, उसके रवायात को समझने में अहम किरदार अदा करती है। सोशल मीडिया वो आला है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि शेयर किया गया मवाद दुरुस्त, काबिल एहतराम और गंगा जमुनी तहजीब की हकीकी तफ़हीम और तारीफ़ को फ़रोग़ दे। Very good presentation. Asma will be presenting. Asma. इस सेशन की निज़ामत कर रहे प्रोफेसर अतहम हुसैन सर और अब्दुल जब्बार को दीगर शरकाए मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सेशन में मेरा जो टॉपिक है, मौजूद है, वो है हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब माजी व हाल पे आई नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र एहसान अदा करना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, और अगर एक हिंदुस्तानी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ का नेचर क्या है, यहाँ की काबिल फ़ख्र चीज़ें क्या है, यहाँ का तहजीबी वरसा क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें ना सिर्फ मालूमात होनी चाहिए, बल्कि जहाँ जब जैसे मौका मिले हमें प्रैक्टिस में भी चीज़ें लानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क
चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर है। इसी तरीके से जमहूरियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जमहूरियत के लिहाज से। तो ये सब चीज़ें भी काबिल फ़ख्र हैं जो हमें एक हिंदुस्तानी होने का फ़ख्र का एहसास दिलाती हैं। हिंदुस्तान की तारीफ जितनी कदीम है उतना ही कदीम यहाँ पर तहजीबी और सकाफती वर्षा भी है। जब से तारीख शुरू हुई है तब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मखसूस तहजीब और सकाफत भी उभर कर सामने आई है। हिंदुस्तान तहजीब और तमद्दुन का गहवारा कहलाया जाने वाला एक मुनफरिद मुल्क है। तहजीबी वर्षे के लिहाज से इसकी इंफरादियत इस अम्र में मुज़मर है कि यहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने आकर पनाह ली बल्कि वो हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन में इस तरह पैवस्त हो गई कि मकामी कबाइल और बैरूनी कौमों में इम्तियाज़ कर पाना मुश्किल हो गया। अगरचे ये मुख्तलिफ बहस है कि एक ही मुल्क में रहने वाले अफराद के कबाइल, इलाके, ज़ात पात और ज़ुबानें मुख्तलिफ कैसे हो गई। ज़ेर गौर बात यह है कि तमाम तर इलाकाई, नस्ली, लिसानी इख्तिलाफ़ात के बावजूद हिंदुस्तान तहजीबी व मजहबी रवादारी का एक बेहतरीन नमूना है। इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाज़ा एक ऐसे बाग से लगाया जा सकता है जहाँ मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के फूलों के पौधे लगे हुए हों। ये सब पौधे एक ही माली की निगरानी में पनप रहे हों, एक ही पानी से सैराब होते हों, एक ही किस्म की खाद से अपनी ज़रख़ीज़ी बनाए रखे हों और हर फूल अपनी फितरत, रंग और रूप, खुशबू के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होकर अपनी इनफरादियत भी बनाए रखता हो। मगर इस बात की खूबसूरती में हर पौधा और हर फूल अपना किरदार भी बखूबी निभा रहा हो, बखूबी अदा कर रहा है। प्रोफेसर अख्तर वासी रहमतराज है कि यहाँ तसव्वुफ़ की रिवायत ने वस्ल ख़ाही और सुलह कुल की रिवायत को जन्म तो दिया, दूसरी तरफ भक्ति की परंपरा ने मानव प्रेम असलियत को आगे बढ़ाया जिसमें शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। वाकई हिंदुस्तान की तारीख़, अदब व फ़लसफ़ा, शायरी, फ़िक्र व ख़याल, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों की डोर में भी बरसों से मानव प्रेम की लीद देखने को मिलती है। अपने मज़हब व फ़लसफ़े पर कारबन रहते हुए दीगर मज़ाहिब के साथ रवादारी बरतना, अपने तीज त्योहारों के साथ दीगर कौमों के त्योहारों का एहतराम करना, अपने तहजीबी वर्ते की हिफाजत करते हुए दीगर तहजीबों की इज़्ज़त करना, इंसानी भाईचारा व हमदर्दी का मुज़ाहिरा करना, बिला तफरीक, रंगो नस्ल, मज़हब व ज़ुबान के समाजी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना, एक दूसरे की खुशी व गम में शिरकत करना, रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसियों का ख्याल रखना, औरतों की इज्जत व एहतराम करना, ये सब इसके ख़मीर और ज़मीर का हिस्सा रहे हैं। बाद आज़ादी हिंदुस्तान का आइन मुरतब किया गया और इसकी इंफरादी खुसूसियत रही है कि ये दुनिया के दीगर ममालिक के आइन कानून के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मखसूस व मुफस्सल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेकुलर और जमहूरियत के करीब है। मगर आज हिंदुस्तान के हालात जिस रुख पर निकल पड़े हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, जबकि इस मुल्क को एशिया की एक मुस्तहकम और मजबूत ताकत के तौर पर नुमाइंदगी करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी साजी संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब को न सिर्फ साबिका रिवायात पर बाकी रखें बल्कि उसको मज़ीद मजबूत कर बनाए। बकौल अल्लामा इकबाल के हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को अंग्रेज़ी गलबा तसल्लुत और फिरंगी अफ़कार और नज़रियात ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। हिंदुस्तान की सीधी सादी अवाम पर हुकूमत करने का एक ही रास्ता उनको नज़र आया और वो ये था कि यहाँ पर कौम, मिल्लत, इलाके और मजहबी व लिसानी इख्तिलाफ यानी डाइवर्सिटी की बुनियाद पर लोगों को बाहम मुतसादिक यानी बाहम लड़ा दिया जाए, दस्त बगरीमा करके खुद सुकून से हुकूमत की जाए। और बिलाशुबा ये लोग अपने मकासद में उस वक्त बहुत हद तक कामयाब भी हुए थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल होने के बावजूद नफरत की इस आग को ख़त्म नहीं किया जा सका है। अवामी इत्तेहाद को मुतासिर करने के लिए अंग्रेज़ों ने जहाँ बहुत सी कोशिशें की, इनमें एक बड़ा कदम मजहबी बुनियादों पर हिंदुस्तानी तारीख की ज़मराबंदी भी है। कहीं वैदिक पीरियड तो कहीं मुग़लिया अहद वगैरह, जिसके नतीजे में हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़बरदस्त तौर पर मुतासिर हुआ। और आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने के बावजूद एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ मजहबी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा दंगे और फसादात होते हैं। ताहम आज भी हालात ऐसे मायूस कुन नहीं है। भाईचारा और बाहमी यकांगत की जो हिंदुस्तानी तहजीब का खासा रहा है, इसके समरात, इसकी मिसालें जगह जगह आज भी हमारे समाज और सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। मैंने बहुत सी मिसालें यहाँ पर मेंशन की, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिसालों को अगर मैं जिक्र करूँगी तो वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए मिसालों को आगे बढ़ाते हुए कहने का मतलब ये है कि जो साबिक में हमारी रिवायात रही है, कहीं ना कहीं उसके
ऐसे भी अपराध निकल के सामने आते हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म करने की, इन चीज़ों को हटाने की और बचाने की लोगों को कोशिश करते हैं। तो हालात अब भी इतने मायूस कुन नहीं है। शर्त यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चीज़ों को महसूस करना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। इस बात को मलूज़ खातिर रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की की राहें सर नहीं कर सकता जब तक कि उसकी बागडोर संभालने वाले अफराद और अक़वाम बाहमी प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत और भाईचारा और एक दूसरे पर एतमाद और भरोसे की कैफियत ना पाई जाती हो। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के लफ्ज़ों में गुलहाए रंग का रंग से है ज़ीनत चमनती, ए ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ़ से। हिंदुस्तानी अवाम को ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब जब मुल्क का भाईचारा मुतासिर हुआ है या इस मुल्क की सालिमियत को ख़तरा लाहिक हुआ है, इसका बराह रास्त या बिल रास्त यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा हुकूमत और सियासत को होता है। प्रोफेसर अख्तर वासी के अल्फाज में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सियासत मजहब का अपने मकासद फासिदा के लिए इस्तेमाल करती है, यानी सियासत जब मजहब को बुनियाद बनाकर अपने मकासद पूरी करती है, तो राम को बनवास के लिए जाना पड़ता है, ईसा को सलीब पर चढ़ना पड़ता है, हुसैन को करबला में शहीद होना पड़ता है और हमारे ज़माने में महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ती है। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने इस शेर में बताया है कि जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मुल्क के हसास और बाशऊर और संजीदा अफराद की जिम्मेदारी है कि मुल्क के बदलते मंजरनामे के पेश नज़र माजी व हाल के हालात को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करें, मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करें। ऐसी हिकमत अमलिया तश्कील दी जाए जिन्हें रूब अमल लाकर मुल्क को न सिर्फ फ़िरका वाराना कशीदगी और मुनाफरत से दूर रखा जा सके बल्कि फिर से भाईचारा व यकानत की रिवायात जारी व सारी की जा सके और एक दफ़ा फिर इस मुल्क को तारीख़ के पर्दे पर इस हैसियत से नुमाया करें जो कि खुद इसकी अपनी शनाख्त थी, कभी इसकी अपनी आइडेंटिटी थी और मुल्क तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से, मादियत व दौलत के लिहाज से, तालीम व महारत के लिहाज से और इंसान दोस्ती के लिहाज से आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। Mr. President Muhammad Haider Ali, Board of Education in promoting the democracy. Teachers and fellow presenters, Assalamu alaikum. I am honored to present a seminar paper on the role of education in promoting Ganga Jamuni Tehzeeb in India. India, in a diverse country like India, where social and religious division can pose challenges to unity and harmony, education becomes an essential tool for nurturing pluralistic values and fostering mutual respect among its citizens. This seminar paper explored the vital role of education in promoting Ganga Jamuna Tehzeeb, the composite culture of India, and also discusses the historical significance of Ganga Jamuni Tehzeeb, highlights the contemporary relevance of its promotion, and present effective strategies for integrating its principle within the educational framework. It emphasizes the need for inclusive curricula, religious and moral education, language and literature studies, teacher training and community engagement to ensure a cohesive society that celebrates its rich cultural heritage. I am skipping some points because time is limited. Contemporary relevance and challenges in the present day. India faces challenges posed by social and religious division, often leading to communal tension. There is a need of promoting Ganga Jamuni Tehzeeb to counter these challenges. It explores the importance of education in fostering values of tolerance, respect and inclusivity, ultimately nurturing a cohesive society that celebrates diversity. Strategies for incorporating Ganga Jamuni Tehzeeb within the educational framework. Inclusive curricula. Inclusive curricula in education are indispensable for the preservation and promotion of Ganga Jamuni Tehzeeb in India. By fostering cultural sensitivity, appreciation of shared heritage and intercultural understanding, inclusive curricula create an environment that celebrates diversity and promotes unity. Strategies such as reviewing and revising curricula, employing interdisciplinary approaches, encouraging
collaborative learning and dialogue, and providing teacher training and professional development are essential for successful implementation in inclusive curricula. Through concerted effort, we can ensure the future generation embrace the value of Ganga Jamni Tehzeeb, leading to moral, harmonious and inclusive society. Religious and moral education. Promoting interfaith dialogue through comparative religious studies to dispel stereotypes and foster respect for all religions. Introducing moral education to instill universal values of tolerance, compassion and respect for diversity. Language and literature studies. Encouraging the learning of multiple languages, including regional languages, to bridge linguistic divides and foster cultural integration. Integrating literary works that showcase the syncretic tradition and shares heritage of different communities to cultivate a sense of shared identity. Teacher training and professional development. Conducting workshop and training sessions for teachers to enhance their understanding of Ganga Jamni Tehzeeb and its significance. Equipping teachers with innovative pedagogical approaches that promote inclusivity, dialogue and understanding among students. Community engagement. Collaborating with local organizations to organize cultural events, heritage walks and interactive sessions for students to explore the richness of diverse tradition. Encouraging parental involvement in school activities to create a cohesive educational environment that reinforces the value of Ganga Jamni Tehzeeb. We conclude that education plays a vital role in promoting Ganga Jamni Tehzeeb in India by embracing inclusive curricula, fostering cultural sensitivity, promoting religious and moral education, emphasizing language and literature studies, providing teacher training and engaging with communities. Education can serve as a powerful force for nurturing unity, harmony and mutual respect among diverse communities. It is through the collective efforts of educators, policymakers and society at large that the principle of Ganga Jamni Tehzeeb can be integrated in the educational fabric of India, ensuring a future where cultural diversity is celebrated and cherished. Thank you. Nabi Raza Khan. Nabi Raza Khan. Nabi Raza. Okay. Muhammad Uzair Azmi. सदर मजलिस, नाज़िम सेमिनार और मकाला निगरान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकाले का उन्वान है गंगा जमनी तहज़ीब के फ़रोग़ में मुस्लिम दानिशवरों का किरदार। ये मकाला मुतव्वल है, तकरीबन 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैं सिर्फ उनके अहम नुकात पे बात करूँगा। ये मकाला को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैंने उस मकाले की अहमियत, गंगा जमनी तहज़ीब की अहमियत पर बात की है। उसके बाद गंगा जमनी तहज़ीब क्या है, उसका वजूद कैसे हुआ, उसके अक़दार क्या हैं और उसके तरीक़ेकार क्या हैं, उस पर मैंने मुफस्सल बात की है। उसके बाद गंगा जमनी तहज़ीब के फ़रोग़ में मुस्लिम उलमा का क्या किरदार रहा है, उस पर मैंने तफसीली बात की है। और उसके बाद मुस्लिम दानिशवरों का गंगा जमनी तहज़ीब के फ़रोग़ में क्या रोल रहा है, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे तालीमी तौर पर हो या इदाराती तंजीम पर हो या तंजीमी तौर पर हो या अखबार और रसायल के तौर पर हो, उन तमाम खिदमात को मैंने इसमें शामिल किया है। और आखिर में हमने इस मकाले में ये दिखाने की है कि इस नफ़रत भरे जो नफ़रत की बाज़ार इस मुल्क में है, हम किस तरीके से गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ दे सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है, और उसको मैंने बयान किया है। तो अब मैं कहीं कहीं से जो अहम पैराग्राफ उसको पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान एक कसीरुल सक़ाफ़ती मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब मतनों और अलग अलग रीति रिवाज का देश है। मुल्क में आगाज़ ही से गंगा जमनी तहज़ीब का चलन रहा है। हिंदुस्तानी मुआशरे में शुरू ही से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, अक़ाइद और मुतफ़र्रिक़ नज़रियात के लोग बसते आए हैं। इस्लाम की आमद से कब्ल बहुत सी कौमों और मज़हबों ने यहाँ की बोदोबाश इख्तियार की और अपनी हुकूमत और सल्तनत कायम की। मुल्क में इस्लाम की आमद से एक नए दौर की शुरुआत हुई। मुसलमानों ने इस मुल्क में फ़िक़ावाना नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने की पूरी जद्दोजहद की।
اسلام کی آمد سے گنگا جمنی تہذیب، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، قومی یکجہتی، مذہبی رواداری، اخوت و بھائی چارگی، پیار و محبت، انسان و اقدار کو فروغ ملا۔ مسلمانوں کی آمد اور سماجی لین دین کی وجہ سے ایک ایسی مشترکہ تہذیب وجود میں آئی جو گنگا جمنی تہذیب کے نام سے معروف ہوئی۔ دیگر دانشوروں کے ساتھ ہند کے مسلم دانشوروں نے بھی اس تہذیبی روایات کی بقا، نشو و نما اور فروغ کے لیے کافی جتن کیے۔ گنگا جمنی تہذیب کی بقا، بحالی اور فروغ میں مسلم دانشوروں نے بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے لیے غیر سرکاری طور پر ادارے، تنظیمیں، فاؤنڈیشن قائم کی، کتابیں شائع کی، رسائل و جرائد، میگزین اور اخبار جاری کیے ہیں۔ لہٰذا مسلم دانشوروں نے ملک کی بقا و سلامتی، تعمیر و ترقی، امن و امان کی بحالی کے لیے تحریری، تقریری اور انتظامی طور پر کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے جہاں مختلف زبانوں، مذاہب، ذاتوں، رنگوں اور ریتی رواج کے ماننے والے آباد ہیں۔ یہاں گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کا ماحول طویل زمانہ سے برقرار ہے۔ اس ملک کی منفرد پہچان اور خصوصیات دوستی، اخوت، پیار و محبت، بھائی چارگی، یکجہتی، مساوات، رواداری و ملنساری، غمگساری، درد و الم میں شرکت، نامساعد حالات میں امداد و مدد فراہم اور رفاہی کاموں میں شرکت، قومی یکجہتی و فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہیں۔ مسلم علماء نے اس کی بقا اور بحالی کے لیے تحریری، تقریری اور عملی کوششیں کی ہیں۔ ان لوگوں نے ملک میں مشترکہ تہذیب و تمدن اور گنگا جمنی تہذیب کی برقراری اور اس کی اشاعت کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تاریخ کی اوراق میں سنہرے لفظوں میں ضبط ہیں۔ مسلم علماء نے ہر دور میں ہندوستانی تناظر میں گنگا جمنی تہذیب کی بات کی اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے لائحہ عمل تیار کی۔ ہندوستانی علماء نے ہر دور میں گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں اپنا فرض منصبی ادا کیا، اپنے اپنے طریقوں سے ایشور کے بندوں کو محبت، رواداری، آپسی بھائی چارہ، انسان دوستی کا درس دیا، خواہ وہ دینی مدارس کی مسندوں سے ہوں یا مساجد کی ممبروں سے، خانقاہوں کی مجالس سے ہوں یا اولیاء کرام کی واضح نصیحتوں سے، سیاسی میدانوں سے ہوں یا جلسوں سے، گفت شنود سے ہوں، گفت شنید سے ہوں یا صاحب تصانیف و تعلیم علماء کے اکیڈمیوں سے، اقوامی اور بین الاقوامی کانفرنسیں سے ہوں یا سیمیناروں سے، جلسوں سے ہوں، رسائل و جرائد کی مدد سے ہوں یا اخبار سے، الغرض علوم اسلامیہ کے ماہرین نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاشرے سے نفرت، تشدد، بغض و عناد کو مٹا کر ملک و سماج میں امن و امان، سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم ادا کیا ہے۔ یہ بھی طویل ہے۔ اس کے بعد مسلم دانشوروں نے جو خدمات انجام دی ہیں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے جو اس میں مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الہند مولانا محمود حسن مدنی کا تذکرہ کیا ہے، اور پروفیسر عادل حسین کا تذکرہ کیا ہے، اور مولانا مظہر الحق کہ جنہوں نے گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کے لیے پٹنہ کے اندر صداقت آشرم قائم کیا، اسی طرح ودیا پٹ انہوں نے قائم کیا، اسی طرح انجمن اسلامیہ ہاتھ ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے جو اخبار ہندو مسلم اتحاد کے فروغ میں نکالے تھے، دا سارت لائٹ اور دا مدر لینڈ کے نام سے انہوں نے جو اخبار جاری کیے تھے، اور ان میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بات کی، اس میں بھی کافی تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں آتا ہوں کہ جو میں نے کیا گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کے لیے عصر حاضر میں مذہبی اقدار، تہذیبی روایات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کے لیے مختلف مذاہب کے درمیان بقا باہم کے اصول کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، مختلف مذاہب کی تفہیم کے لیے ادارہ سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سماج میں ایک مثبت رویہ پروان چڑھے اور جس سے ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو تقویت ملے۔ نمبر 4، مذہب اور عقائد کا اختلاف قیامت تک باقی رہیں گے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت اور دوسرے کے مذہب اور ثقافت کا احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں گنگا جمنی تہذیب کی تعمیر ہو سکے۔ نمبر 5، گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کے لیے ہمیں تمام مذاہب میں جو مشترکہ اقدار ہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، مشترکہ اقدار کے فروغ کے لیے مختلف مذاہب کی آسمانی اور دیگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، مذہبی کتابوں میں کس طرح کی درجہ بندی ہے، کون سی مذہبی کتابیں اساسی طور پر قانون کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی کتابیں ہر مذہب ثانوی اہمیت کی حامل ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مذہبی کتابوں سے متعلق جو غلط فہمیاں ہوں وہ دور ہوں اور ملک میں گنگا جمنی تہذیب مضبوط ہو۔ نمبر 8، مذاہب کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کے ادارے کے لیے مقدس کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے
ताकि मुल्क में मजहबी रवादारी आम हो। नंबर 9, गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग के लिए एक दूसरे की तहजीब व ज़ुबान को जानने की ज़रूरत है ताकि समाजी और लिसानी यकजहती पैदा हो। नंबर 10, गंगा जमनी तहजीब की रोशनुमा के लिए इसके अक़दार और जरूर को तलाश करने की ज़रूरत है ताकि उन बुनियादों पर उनकी आबजारी की जा सके। नंबर 11, फिल्मावारों महंगी के फ़रोग के लिए मजहबी तालीम को हर सतह पर आम करने की ज़रूरत है ताकि दिगर मज़ाहब के बारे में मालूमात हासिल हो। नंबर 12, कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए दिगर मज़ाहब की खदमात को उजागर करने की ज़रूरत है ताकि हुकूमत व भाईचारे की रिवायत परवान चले। ये तवील बहस है, मैं अपने मकाले को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आइए शहीद शाह गानी। मैं शहनशाह गनी रिसर्च स्कॉलर, ये जॉइंट पेपर है। प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब, एसोसिएट प्रोफेसर शोभा मेरा मकाला हिंदुस्तान और गंगा जमनी तहजीब माजी और असर हाजिर के रोशनी में। सामीन, मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामों निशान हमारा। मुअज़्ज़ज़, अगर हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बात करें तो हमें माजी के हिंदुस्तानी रिवायत और तहजीब को जानना ज़रूरी होगा, जो मैं यहाँ मुख्तसर तौर पर पेश करता हूँ। जब हम हिंदुस्तानी तहजीब का मुताला करते हैं तो बहुत सी दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जैसे कौमी यकजहती, इत्तिहाद, भाईचारगी की मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आर्यों की हिंदुस्तानी आमद के नतीजे में कदीम तरीन हिंदुस्तानियों की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब का खात्मा और उनकी जगह आर्यों की सादगी और इंसानी कदरों से मामूल तहजीब का उरूज। आर्यों की इब्तदाई तहजीब में रस्म और रिवाज का ना वो जोर ही था और न ही देवी देवताओं के लिए गुंजलक और नाकाबिल फ़हम तसव्वुर। एक खुदाए बरतर वो बुजुर्ग का तसव्वुर गो के उस तक पहुँचने के लिए देवताओं का तसव्वुर मौजूद था। सीधी सादी मजहबी ज़िंदगी, औरतों के हुकूक, इज़्ज़त व आबरू का एहतराम, ज़ात पात, नस्ल वगैरह से आज़ाद सीधा साधा मुआशरा था, जिसमें हर फर्द अपनी जगह अहम और समाज का जिम्मेदार था। हर दौर में हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती रही है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ मुख्तलिफ अफकार व नज़रियात, अलग अलग मज़ाहिब, ज़ात, नस्ब, इलाक़ा और कई ज़बानें बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इस मुल्क में जहाँ हिंदू योगियों की नज़रिया और हिंदू धर्म के फ़रोग़ में इत्तबा का खुल्ला मौका दिया, तो वहीं इस मुल्क ने मुस्लिम सूफियों और मज़हब इस्लाम के परवान चढ़ने की भी राहनुमा हुई है। इसी तरह सरज़मीन हिंद में बुद्ध, सिख और जैन मत और उनके अफकार और नज़रियात की तबलीग में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई, बल्कि सभी अपने मज़ाहिब और अफकार व नज़रियात के पाबंद होने के साथ साथ वह हम मिलजुल कर रहते आए हैं। बक़ौल अल्लामा इकबाल, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुल्क में अंग्रेज़ी हुकूमत मुसल्लत हुआ। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को अपना कर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उस वक्त भी मुल्क के तमाम बाशिंदों ने बिना मजहब व मिल्लत अपने इत्तेहाद को कायम रखा और अंग्रेज़ों के मुखालिफत की। बिलाखिर हमारी जद्दोजहद गंगा जमनी तहजीब और इत्तेहाद के सामने अंग्रेज़ों ने अपने घुटने टोके और मजबूर होकर इस मुल्क से भागना पड़ा। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब की ताकत के बिना पर ही हमें कामयाबी मिली। हर दौर में कुछ मुट्ठी भर अनासिर ऐसे रहे हैं जो मुल्क की सलामती, अमन व चैन, इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है। अब मैं असर हाजिर के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मुख्तसर तौर पर बोलना है कि असर हाजिर में भी कुछ शर पसंद अनासिर, फिस्ताई ताकतें और आइन मुखालिफत अफराद इस मुल्क के अमन व अमान, इत्तेहाद, भाईचारगी को ख़त्म करके वो अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे अनासिर को अपने इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब से मुँह और जवाब देकर उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने से बचा सकते हैं।
اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے. آج ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب کثرت میں وحدت کے ایک نازک توازن پر مبنی ہے، جس کے بگڑنے سے ملک میں ایک ایسا انتشار اور برتری پیدا ہو سکتی ہے جس سے ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہی نہیں بلکہ جمہوری نظام پر بھی اثر اور خطرہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ملک کی اتحاد، امن و چین اور گنگا جمنی تہذیب کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے اور کسی بھی حالت کا سامنا مل جل کر کرتے ہوئے اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کریں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندی سے کرنا ہم بل بولے گے اس کی یہ Next President Mohammed Iftkhar Hussain. My main title is the potential of social media and formative Hindu community in India. Me as a friend, and with your permission, I am going to social media is a platform for a strong force that can break down a barrier. Topic is the potential of social media in promoting Hindu-Muslim unity in India. Social media platforms are a strong force that can break down the barriers of help people from different religious backgrounds connect with each other. Social media platforms have to not only inspire people but also change the stories we tell about ourselves and to the world as whole world spreading these heart-warming stories and the messages they contain. We live in a time when people are more connected with ever before, and we can see how power of social media is change grassroots effort to the religious harmony. Though the carefully chosen content and the foster the study of faith and certain as a faith where learning becomes a second hand. Social media endures organize rallies, protests, lobbying campaigns and support the harmony, while fairly recording acts of communal violence through online forms. Lively discussions and interesting the materials often together creating atmosphere that help people to learn more about each other faith. This leads to a deeper era of peace and acceptance. The paper talks about the important role of social media plays in making it possible for Hindu-Muslim unity to share the resources, help each other for future. The paper also says that promoting Hindu-Muslim unity in India requires a multi-dimensional approach used for social media teach in this real world. Empowering strategies to bolster Hindu-Muslim unity through the potential of media. Just wrote in the most explanation, but I am just speaking explanation. I want to highlight the main part of my paper. Social media phenomenal power involves interesting interfaith initiatives. Second one is social media success is promoting peace, tolerance and unity made with a powerful weapon against the hate speech. Third one is the explanation influence of the social media activity grassroots movement from interfaith harmony. Fourth one is personal stories have a lot of power and social media is a great place to show how Hindu and Muslim can work together. Fifth one is social media transformative potential and promoting interfaith harmony through communication and mutual understanding. Sixth one is spreading love and hope, the power of social media to bring Hindu and Muslim together. Concluding remark, the social media has the potential to promote interfaith harmony and peace among the different communities. However, it is important to demand the social media as alone and not solve deeper rooted social religious diverse. Effort should be made offline as well, such as fostering interfaith interaction, promoting culture exchange and advocating inclusive policy.
a multi-dimensional approach combining social media, engaging with real world action. It's crucial for promoting Hindu-Muslim unity in India. Usma? मेरा टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन इन प्रमोटिंग गंगा जमुना तहजीब। तो इस पेपर का मकसद है कि वुमेन का क्या रोल है गंगा जमुना तहजीब को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गंगा जमुना तहजीब क्या होता है, जो कि हम लोग समझ भी चुके हैं। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में सिर्फ हिंदू नहीं और कम्युनिटी के लोगों की जो यूनिटी की बात करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी से समझते हैं। किसी इंडिया के किसी स्टेट में दो लड़कियां रहा करती थी। एक का नाम था मीरा और एक का नाम था अलीशा। मीरा जो थी वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और अलीशा जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो मीरा और अलीशा जिस जगह पे रहती थी, जिस मोहल्ले में वो रहती थी, वहाँ पे जो तहजीब थी वो गंगा जमुना तहजीब थी और सब लोग वहाँ पे मिलजुल करके रहा करते थे। और वहाँ पे सारा जो ट्रेडिशन था, फेस्टिवल था, सब लोग मिलके मनाया करते थे। जैसे दीपावली हो रहा है या फिर ईद हो रहा है तो सब लोग आपस में मिलजुल कर करते थे। तो उन दोनों के माइंड में चीज़ बन गया था कि ये जो गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे है वो हम लोगों को आगे भी प्रमोट करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट किया और उस कल्चरल प्रोग्राम में उन्होंने सारे कम्युनिटी के लोगों को बुलाया और वहाँ पे एक मतलब प्रोग्राम कंडक्ट हुआ और उसमें ये कहा गया कि सारे लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करें। तो उसमें डांस, म्यूज़िक सब कुछ किया गया। उसमें ये दिखाया कि हिंदूज़ के जो सॉन्ग थे उसको सूफीज़ के सॉन्ग से मिक्स करके बनाया गया और ये सारे कल्चर का वहाँ पे फ्यूज़न हुआ। तो ये चीज़ वहाँ पे देखा गया। तो अलीशा और मीरा ने ये चीज़ वहाँ पे लाई कि किस तरह से डाइवर्स कम्युनिटी के लोगों को मर्ज किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि वो दोनों भी वुमेन थी और उन्होंने भी ये एक्शन लिया। तो एज अ वुमेन हम लोगों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरी रूममेट भी वो हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो हम लोग भी एक साथ मिलजुल के रहते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं। तो गंगा जमुना तहजीब जो है वो अपने रूममेट के साथ भी है और मेरी मैम वनजा मैम भी है, तो वहाँ पे भी गंगा जमुना तहजीब हम लोग मेंटेन करते हैं। और ये चीज़ हो गई। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो रज़िया सुल्ताना जो दिल्ली सल्तनत की रूलर थी, तो उन्होंने भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा किया कि गंगा जमुना तहजीब को प्रमोट किया है। वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशंस में डाइवर्स कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया, ठीक है, सबको जॉब दी। ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। फिर सेकेंड वन सरोजनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर है, पोएट हैं, उन्होंने भी दिखाया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। एंड हम लोग जब भक्ति और सूफी सेंट्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जो महिला थी वहाँ पे वो बहुत सारे सॉन्ग्स बनाती थी और सारे सॉन्ग्स को जॉइंट्स करके बनाया जाता था। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है। जब हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो संगम संगिनी जो हम लोग देखते हैं उसमें ये कहा गया है कि सिस्टर्स की हारमोनी, मतलब कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और वहाँ पे डिफरेंट वुमेन्स आकर के एक प्लेटफॉर्म पे बात करती है। वहाँ पे सारे कल्चर और ट्रेडिशन को जोड़ा जाता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंट सिनेरियो से, अगर प्रेजेंट सिनेरियो का एक एग्जांपल लें तो कानपुर के यूपी के कानपुर की एक महिला है, उन्होंने पूरे रामायण को उर्दू में कन्वर्ट किया है। तो ये भी एक वुमेन का गंगा जमुनी तहजीब को प्रमोट करने का एक एग्जाम्पल है। तो इतना सारा एग्जाम्पल और उस कहानी से हम एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि वुमेन किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को प्रमोट कर सकती है। तो यही मेरा पेपर था। थैंक यू। नाज़िया फरोज़, मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सामिल। ये जॉइंट पेपर है। इसमें डॉक्टर जरार अहमद साहब ने बहुत ही रहनुमाई कमाई है। मेरा टॉपिक है
गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ में अदब, नाबगा रोज़गार, शख्सियात और टेक्नोलॉजी बशमूल मसनूई ज़हानत का रोल। अदब की तरबियत व इशाअत, फ़िक्री सलाहियतों का फ़रोग़ और मसनूई ज़हानत समेत तकनीकी तरक्की ने गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। इस सहाफ़ती इम्तिज़ाज़ में जिन नुमाया शख्सियात ने अहम खिदमत अंजाम दी हैं उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद और दीगर काबिल ज़िक्र शख्सियात शामिल हैं। इनकी अदबी सलाहियतों और विज़न ने गंगा जमनी तहजीब को तक़वीत बख्शी। इस मज़मून ने गंगा जमनी तहजीब की तरक्की में अदब, नाबगा रोज़गार, शख्सियात बशमूल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मसनूई ज़हानत समेत टेक्नोलॉजी के कसीर जदीद किरदार से मुताल्लिक़ बहस की गई है। जश्न मनाती नज़र आती है, जिससे दोनों बिरादरियों में सकाफ़ती इत्तेहाद का एहसास पैदा करने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ में नाबगा रोज़गार शख्सियात के किरदार पर। गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ देने में बहुत सी नाबगा रोज़गार शख्सियात अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, जिनमें अदीम मुजाहिद आज़ादी, आयद, बेबाक और मुफ़क्किर, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनसे ये अदीम इदारा की मंसूब है, का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में कारहाय नुमाया अंजाम दिया। आप कौमी यकजहती और इंसान दोस्ती के सच्चे अलमबरदार थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सिलसिले में मौलाना आज़ाद ने अपने कई कोशिशें जारी रखी। उन्होंने हर मौका पर कुरान करीम और इस्लामी इक़दार और रवायात से यह साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान और मुसलमानों की तहज़ीब और उनका रोशन मुस्तक़बिल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती में मुज़म्मन है। उनके अदबी शाहकारों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा किया। ख़ास तौर से इसारा अल-हिराज, जिसका बुनियादी मकसद ही कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तक़वियत देना था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस रिसाले पर पाबंदी आयद कर दी गई और अल-बिलाग के नाम से दूसरा अखबार जारी किया गया। इस अखबार का नाम बदल दिया गया, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। हम बात करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ में मसनूई ज़हानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या किरदार रहा है। अगर मसनूई ज़हानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये जदीद दौर के मुआसरे के लाज़मी अज़ा बन चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में अपना रोल अदा कर सकती है। फ़िक़ा वाराना हम आहंगी, सक़ाफ़ती इफ़हाम व तफ़हीम और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने में AI के कुछ मुमकिन इलाक़ात को दर्जा देना। सक़ाफ़ती वसीक़ा डिजिटल तहफ़्फ़ुज़, कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विज़न जैसी AI टेक्नोलॉजीज़ को सक़ाफ़ती नमूने, मख़्तूतात, दो कहानियों और गंगा जमनी तहजीब से वाबस्ता ज़बानी रवायात को डिजिटाइज़ करने और महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आने वाली नस्लों के लिए इनकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सकेगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों की रसाई भी हो सकेगी, जिससे सक़ाफ़ती इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगा। दूसरा, अदबी ज़ख़ायर का तर्जुमा। मसनूई ज़हानत से लैस तर्जुमा करने वाली आलात की मदद से मकामी ज़बान में मौजूद अदबी ज़ख़ायर जैसे कि गीत, नज़्म वगैरह को वसी पैमाने पर बोली जाने वाली ज़बान में तर्जुमा किया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में गंगा जमनी तहजीब की बड़े पैमाने पर नशर व इशाअत और तफ़हीम मुमकिन हो सकती है। मुख्तलिफ़ अदबी शाहकारों के लिए सिफारसी निज़ाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम की इसको सिफारसी निज़ाम पर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पुख्ता तौर पर गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करने वाली अदबी शाहकारे और मुसन्निफ़ीन के बारे में मशवरा दे सकते हैं। ये निज़ाम सार्फिन की तरजीहात और उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक तहरीरों की सिफारिश कर सकते हैं, जो फ़िक़ा वाराना हम आहंगी, बैनुल-मज़ाहिब मुकालमे और सक़ाफ़ती तनव्वुर को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो सकते हैं। आखिर में ये कहें कि यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि अगरचे AI गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसके अखलाक़ी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए और इसकी हसासियत को समझते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए, ताकि सक़ाफ़ती बारीकियों, तासुबात और मकामी कम्यूनिटीज़ की शमूलियत को मद्देनज़र रखते हुए AI टेक्नोलॉजीज़ के बाइज़्ज़त और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया। Dr. Tarwir Fatima, Role of Constitution to Promotion of Humanitarians. Okay. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Tarwir Fatima, Assistant Professor in Department of Education and Training. So my topic for this presentation is Role of Constitution in Promoting Ganga Jamuna Tehzeeb.
races, age, and different languages, right? Irrespective of that, we all feel as one. Okay, and this feeling of oneness is nothing but Ganga Jamuna Tehzeeb. Okay, and this kind of feeling is also present in the Constitution of India. The Constitution of India has the aspects of fraternity, sovereignty, democracy. All these aspects are present in the Constitution as well. So the Constitution itself is actually giving us the privilege of being in the Ganga Jamuna Tehzeeb. Okay, so we Indians are the biggest example of unity in diversity. As we celebrate all the festivals together like Diwali, Ramzan and Christmas together, and our food habits, living habits and clothing habits and the traditions which we follow during the marriage ceremonies and all those, when we celebrate all the festivals and all that are very similar. So because of this we can say that our cultures are very similar. So we are not divided, we are one. Yeah, so this is what is Ganga Jamuna Tehzeeb, and the constitution which I wanted to actually how the constitution is promoting Ganga Jamuna Tehzeeb. I want to give that some idea on that. So the constitution itself is actually giving the aspects of the fraternity, which is promotion of brotherhood and promotion of friendship among the citizens of the country. Okay, so when our constitution is giving this feature, so we must actually follow the fraternity among all the religions, and also the aspect of secularism is also the biggest example of maintaining the Ganga Jamuna Tehzeeb in our country, right? So this feature of secularism is also one of the biggest example which we can take from the Constitution of India. Thank you. Zishan Ansari. ये ज्वाइंट पेपर है रिटन बाय उसामा भाई और मैं मोहम्मद ईशान मिलकर लिखे। मेरा टॉपिक है रोल ऑफ स्कॉलर्स इन प्रमोटिंग गंगा जमुनी तहजीब। प्रमोटिंग गंगा जमुनी तहजीब। Scholars play a crucial role promoting the Ganga Jamuni Tehzeeb, which refer to the systematic culture ethos of India that celebrate the coexistence of harmonious belonging to Hindu and Muslim community, including Christian and Jainism. Knowledge, research and intellectual influence of the contribute significant to the fostering understanding, tolerance, as well as some ways scholars can promote the Ganga Jamuni Tehzeeb. Now first, regarding the research and documentation, the scholars can develop into the historical, literary and artistic aspect of the Ganga Jamuni Tehzeeb by including existing research and documentation, their findings, tradition and coexistence of Hindu and Muslim cultures. The research can serve as a valuable resource for generation and contribute to the preservation of the promotion of this culture ethos. Now academic and discourse, scholars can present, engage and academic discussion like seminar, currently we are working, conference and public lecture raise awareness about the Ganga Jamuni Tehzeeb by presenting research, sharing their insight. They can inspire dialogue and exchange ideas among the student academic, as well as dispelling misconception, promoting mutual understanding and fostering respect or tolerance. Now publication and education, scholars can write scholarly articles, book and educational materials like magazine, including Ganga Jamuni Tehzeeb. This publication can be disseminated widely, prepare understanding the culture systematic. Additionally, scholars can contribute to the development of inclusive procedure education institution and improve the Ganga Jamuni Tehzeeb, promoting the pluralistic approach of education. Now cultural festival event, scholar can actively participate and organize culture. The Ganga Jamuni Tehzeeb, these platforms provide opportunities to showcase the culture, practice, music, dance, literary, etc. The form have evolved through the intermediating of Hindu and Muslim tradition by actively participating in such events.
scholar can enough public engagement and appreciation of the Ganga Jamni Tehzeeb. Now last one is the media and digital. In summary, scholars can contribute significantly to promoting the Ganga Jamni Tehzeeb by conducting research, engaging in academic discourse, publication, educational material, organizing cultural events, foresting, infile, and dialogue. The utilizing media and digital platform, their knowledge, expertise, and influence can help create a more inclusive and harmonious society for values, culture, diversity, and respect to shared heritage of India. Thank you. ये पेपर बेसिकली मेरी मैम सुपरवाइजर मैम के जरिए से लिखा गया है, जिसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टॉपिक है गंगा जमुनी तहजीब के फ़रोग़ में दक्कनी हुक्मरानों का रोल। सरज़मीन हिंद हमेशा से ही अपनी बाहें फैलाए हर मेहमान का इस्तकबाल करती रही है। इसकी बेमिसाल खूबसूरती, झिलमिलाती नदियाँ, ज़मरदी मैदान, हसीन वादियाँ, दम बखूद कर देने वाले मर्दार वसी चरागाहें और दिल लुभाव पुरसकून माहौल ने कई कौमों को यहाँ रुकने, ठहरने और फिर यहीं पर बस जाने पर आमादा किया। इस खूबसूरत और दिलपजीर मुल्क को आर्याओं से लेकर अंग्रेज़ों तक ने अपनाने का ख्वाब देखा और यहीं के हो रहे। इस हमर रंगी ने एक गैर मामूली तहजीब की बुनियाद रखी, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से याद रखते हैं। इलाहाबाद में बसने वाली दो नदियाँ गंगा और जमुना एक दूसरे में कम होकर संगम बनाती हैं, जो नहायत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। ये दोनों नदियाँ आपस में दूर दूर तक मिलकर बहती हैं और फिर ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गंगा है और कौन सी जमुना। यही रंग हिंदुस्तानी तहजीब का रंग। इस मुल्क से मोहब्बत रखने वालों ने इस तहजीब को अपने खूने जिगर से सींचा और प्रमाण चढ़ाया। इस मुल्क को एक ऐसे सांचे में ढाला जिसकी दूसरी मिसाल पेश करना मुमकिन नहीं। चुनांचे जनूबी हिंदुस्तान में खुदशाही दौर में भी ऐसी ही मिली जुली शेर शिकर तहजीब व तमद्दुन को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। गोलकुंडा की ज़रख़ेज़ हीरे उगलने वाली ज़मीन से एक ऐसी मुनफरिद तहजीब की दाखिल पड़ी जिसमें उलूम व फ़नून की तरक्की नुमायाँ रही। कुतुब शाहों की ज़ुबान फ़ारसी थी, इसलिए सरकारी ज़ुबान फ़ारसी रही। मकामी ज़ुबान तेलुगु जो कि अवामी ज़ुबान थी, वो भी दाखिल दरबार में। इसी दौरान उर्दू ने भी दक्कन में अपने कदम जमा लिए थे और इस तरह दक्कन में फ़ारसी, तेलुगु, दक्कनी और उर्दू के इम्तिज़ाज से एक नई तहजीब ने जन्म लिया, जो दरअसल गंगा जमुनी तहजीब का ही नमूना थी। उर्दू ज़बान की असर पजीरी ने कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब ज़ुबान शायर बना डाला। उनका शोरे आफाक शेर या बाज प्याला किया जाए ना आज भी नहायत मकबूल है। इस मकाले का मकसद खुदशाही दौर में हमारी दक्कनी तहजीब का फ़रोग़ और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के रचाव में खुदशाहों के किरदार अमल पर रोशनी डाली गई है। इस तहजीब की जड़ें उस दौर से लेकर के आज तक भी दक्कन की ज़मीन में पेवस्त हैं। इस तहजीब की इत्रबीस सदा ने इस वक्त भी और दूर में भी यहाँ पहुँचने वालों को मशहूर कर रखा। शुक्रिया। और सबसे this is from request from our person. Those who have presented their paper, they should have full paper. Okay? If you want to publish your paper in editor book, you should have full paper without any plagiarism, without any like mistakes, explanation of my article. I started my article with an introduction of literature. Literature basically represents overall the formation of the society. Once a writer writes his paper, he is writing nothing but the representation, life image of the people who are living in the earth. The same way, my second paragraph, I will be just talking about the Indian writers like Mutram Anand, Anita Desai, and etc. Then I will be giving little comparison on T.S. Eliot, William Shakespeare, even one more writer, Paradise Lost, Milton. Okay, I will be just comparing these social harmony concept. It is
writer, and basically what is the concept? They are internationally promoting that cultural skills. This is the basic idea of my overall articles. I will be just giving the conclusion in the format, the sort of the way which everybody, internationally, everybody can acknowledge my articles. Thank you. Sir will be giving overall conclusion. Okay, what you did here and what is the performance you did. Thank you, Dr. Abdul Jabbar, my friend and colleague from the same department. First of all, I would like to thank the Department of Education and Training that they have organized a topic, it is a trending topic these days. And it is the need of the time to discuss about this sort of topics, particularly among the scholars, students. This has become the necessity nowadays. So I thank the Department of Education, and I thank the Department of Education to give me a chance to decide this program as a chairperson. In the remarks, I would say many things. First of all, I would say something about this program. ये जो प्रोग्राम है आज महसूस की जा रही है, तो हर दौर में इस तरह की चीज़ों पे फोकस रहा है, लेकिन आज जैसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की चीज़ें उस वक्त नहीं थी, तो लोगों को इसका ज़्यादा असर भी नहीं पड़ता था और इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। हर है और हमेशा हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं। सबसे पहला टोटल मैं बता दूँ आप लोगों को कि 16 पेपर्स इसमें पढ़े गए इस सेशन में। टोटल 16 पेपर्स पढ़े गए इसमें, अलग अलग मौजू पे सबसे नाम जिक्र किया। उसमें जो मेन था उनका वली दक्कनी से लेकर के नज़ीर अकबर आबादी तक के पीरियड पे, और किस तरह से ये ज़बान, उन्होंने बताया कि ज़बान किस तरह से एक आफाकी हैसियत रखता है इन चीज़ों को फ़रोग़ देने में। तो ज़बान बहुत कुछ करता है। इन्होंने तसव्वुफ़ का भी हवाला दिया कि किस तरह से नसर निगारी के ज़रिए, या फिर बहुत सारे ऐसे शायर शुरा का भी नाम दिया, चाहे वो प्रेमचंद हो या चंद्र कुमार जैन के बारे में उन्होंने जिक्र, चकबस के बारे में जिक्र किया, इंटेलिजेंस। तो उसको टच करते हुए उन्होंने जो है अपने पेपर को पढ़ा है, और ख़ासतौर से इस तरह से तहज़ीब को फ़रोग़ दिया गया है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया है। ट्रेडिशन, कल्चर, आइडेंटिटी, ट्रूथ, ड्यूटी, गुडनेस, ये तमाम तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इस पर भी बात किया गया। पढ़ते ना